हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। आज का मोटिवेशनल कोट है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मेंटल हेल्थ रिमाइंडर, रेस्ट व्हेन यू नीड टू। इट्स ओके टू हैव बैड डेज, दीज फीलिंग्स विल पास, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, अमेजिंग थिंग्स आर कमिंग एंड यू आर worthy and enough, right? So always say these things to yourself when you feel low. ठीक है, whenever you feel low in your preparation, just say these things. Rest whenever you are needed. Okay, when you are feeling a bad, uh, when you're feeling low, okay, when something is happening, okay, it's okay. Some days go even, some days go odd, so this feeling will pass. It's just temporary, okay, and there's nothing with wrong with you. Okay, amazing things are coming right ahead, and you are always worthy enough, okay, for every single thing. So let's start the session with an editorial. So आज का एडिटोरियल का हेडिंग है नोबल इंटेंशंस। नोबल intentions. It's about artisans. Artisans need a ready market for their product, not just affordable credit. ठीक है, they just don't need only a affordable credit, okay, but they also need a ready market for their product. Why they need a ready market? Just because uh, there should be a market where there the availability, okay, and demands for their product should be there. Okay, if they are continue creating the product, okay, but if there is no demand, then this product is completely waste. It's a waste. So there should be a ready market. That's it saying, there should be a ready market where these products have some demand, okay, then only if there will be demand, then there will be increase in supply, and that will encourage their capability to producing and continuing their art. Okay, so it's for the artisans. Okay, so let's start. The PM Vishwakarma scheme approved by the cabinet on Wednesday. तो ऑन वेडनेसडे क्या हुआ? पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अप्रूवल मिला टू हेल्प द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल. ठीक है, क्राफ्ट्स पीपल को ये हेल्प करेगा स्कीम. कौन सा स्कीम है? नोट इट, विश्वकर्मा स्कीम. ओके, एंड it will help the craftsmen and artisans can provide an economic boost to these professionals. Okay, can provide an economic boost to these professionals. Okay, those artisans, okay, those artists follow their art, okay, follow their profession with their art. Okay, so this scheme will boost economic, provide an economic boost. It will boost their economic condition. Okay, it will increase their income. Okay, that's what it's saying. Announced by the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मोदी जी ने अनाउंस किया इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये स्कीम के बारे में. ओके, द स्कीम with an outlay of 13,000 crore. ठीक है, 13,000 crore provides loans of up to a total of 3 lakh in 2 tranches. 2 tranches में 2 बार में 3 lakh at a concessional interest rate of 5%. तो कंसेशन मतलब छूट, और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट छूट एक तरह से 15% का इंटरेस्ट रेट दिया गया है. कंसेशनल है ये एक तरह से. किसके लिए है ये? आर्टिस्ट के लिए. तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त के स्पीच में अनाउंस किए कि 13,000 करोड़ ये आउटले. ठीक है, ये एक तरह से आर्टिस्ट के लिए है. ठीक है, उनको हेल्प करेगा, और ये
लोन के रूप में उनको प्रोवाइड करेगा, जिससे वो अपना प्रोफेशन हो वो फर्दर कंटिन्यू करे, इधर इन अ स्टार्टअप फर्म और एनी फर्म दे कैन कंटिन्यू इट, दे कैन टेक इट इन 2 ट्रांचेस ऑफ 3 लाख. ओके, इंटरेस्ट रेट होगा 5%, राइट. एंड इट कवर्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम 18 ट्रेड्स. ठीक है, और इसमें कौन कौन से ट्रेडर्स आएंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे जो आर्टिस्ट, उनको बोला गया है वो 18 कौन कौन से होंगे, सच एज कॉबलर्स, टॉय मेकर्स, लॉन्ड्री मैन, बार्बर्स, मैसन्स एंड कोयर वीवर. ठीक है, तो कोयर वीवर जो फाइबर वाले जो पर्सन होते हैं, मैसन्स, ठीक है, जो कपड़ों का काम करते हैं, लॉन्ड्री मैन, बार्बर जो हो गए, नाई जिसको बोला जाता है, लॉन्ड्री मैन लॉन्ड्री करने वाले जो होते हैं, कपड़े धोने होने वाले, टॉय मेकर बनाने वाले जो खिलौने बनाने वाले जो हैं, ठीक है, वो ट्रेडर्स, एंड कॉबर्स भी इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, सो ये 18 ट्रेड्स पर्सन इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स अबाउट 5 लाख फैमिलीज टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर. ठीक है, पहले ईयर में क्या होगा, गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है दैट 5 लाख फैमिलीज को इसमें कवर होगा, मतलब उनको लोन दिया जा सकता है, कवर किया जाएगा, मतलब ये 13,000 करोड़ का जो अमाउंट है उससे 5 लाख पीपल्स फैमिलीज को यहाँ पे कवर किया जाएगा, सहायता दिया जाएगा. एंड 30 लाख फैमिलीज टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम्स ओवर 5 ईयर, और 5 ईयर्स में 30 लाख पीपल, राइट. तो 30 लाख 5 ईयर्स में और 1 साल में 5 लाख, तो अप्रॉक्स एवरेज हम लोग बोल सकते हैं 6 लैक्स एवरेज पर ईयर. ओके, सो चलो नेक्स्ट. बट द स्कीम कैन हेल्प क्राफ्ट्स पर्सन एंड आर्टिसंस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रीइंग फ्रॉम द डिफिकल्टीज. ठीक है, तो लेकिन ये स्कीम क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस को हेल्प करेगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रीइंग फ्रॉम द डिफिकल्टीज. तो उनको जो मुसीबत है, डिफिकल्टीज है, उससे मुक्त करने में, आज़ाद करने में, फ्री करने में ही मदद करेगा. ओके, दे नाउ फेस इन एक्सेसिंग, और कौन कौन सा डिफिकल्टीज जो फेस करते हैं, दे फेस इन एक्सेसिंग अफोर्डेबल क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम. जो बैंकिंग सिस्टम से अफोर्डेबल क्रेडिट लोन जो वो लेने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ओके, प्रॉब्लम, उसमें उनको हेल्प मिलेगा, आसानी से मिला जाएगा. इसीलिए यहाँ पे ऊपर में जो ये रेट को कंसेशनल रेट बोला गया था, 5% को, सॉरी 5% पे ये जो कंसेशनल रेट इसीलिए बोला गया था, ईजी हो, कंसेशनल छूट होगा इसमें. ठीक है, सो इट विल बी इजीली एक्सेसिबल. ऐसे अगर लोन लेने जाओ तो रेट्स जो रहता है लोन में पे करना पड़ता है वो हायर रहता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिसंस के लिए 5% किया गया है. ओके, नाउ हाउएवर द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू दीज स्ट्रगलिंग आर्टिसंस कम्युनिटीज कुड कम विथ इट्स ओन रिस्क इन द वे ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. तो यहाँ पे बोला गया हाउएवर, लेकिन छूट जो बैंकिंग सेक्टर में से जो डिफ़िकल्टी आता है लोन में पाने में, वो तो उनको मिल जाएगा, लेकिन हाउएवर द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू दिस स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट कम्युनिटीज कुड कम विथ इट्स ओन रिस्क. और ये जो इनको मदद दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा आर्टिसंस कम्युनिटीज़ को, ठीक है, जो कलाकार हैं उन सभी को, एक कम्युनिटी है उनको, ये कम विथ इट्स ओन रिस्क, इसके साथ कुछ रिस्क आएगा, इन अ वे ऑफ इट्स अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. अब ये अनइंटेंडेड जो गवर्नमेंट किया या फिर किसी पर्सन का जो लोन देता है उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी को क्षति पहुंचाने का, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा अनइंटेंडेड होगा तो बोला नहीं जा सकता है. सपोज आर्टिसंस का जो
जॉब प्रोफाइल होता है, ठीक है, एंड देयर आर्ट वर्क समवेयर बहुत सराहना किया जाता है और कभी कभी डिसलाइक भी मिलता है. सो इट डिपेंड्स ऑन देयर आर्ट. ओके, इफ इट विल बी वर्दी, ओके, तो क्रेडिट अगर वो लेते हैं, लोन लेते हैं और उनका वो सक्सेसफुल हुआ, देन इट्स रियली गुड एंड प्रॉफिटेबल. देन वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके दे कैन रिटर्न द लोन अमाउंट, ओके, विद द इंटरेस्ट रेट. बट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन देयर इज सम रिस्क. ओके, ये उसी के बारे में बात किया जा रहा है. सो इट कम विथ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस हो ही सकता है, वेदर खराब कुछ, एंड कभी कभी हेल्थ में इशू होता है. सो इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल ना, इसीलिए. नाउ the challenges they face are far deeper than just availability of cheap credit. और challenges जो face करते हैं are far deeper, बहुत गहरा है, than just availability of the cheap credit. ऐसा लगता है, ऐसा सोचा जाता है कि सिर्फ लोन है सस्ते दाम पे, वो ही एक डिफ़िकल्टी है जो आर्टिसंस या कोई भी पर्सन फेस करता है. लेकिन नहीं, उससे डीपर भी चैलेंजेस होता है एक पर्सन का, एक आर्टिस्ट का, ठीक है, जिसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे. By far the biggest of these that traditional art and crafts professionals face is the lack of patronage of their goods and services in the wider marketplace. जिसमें से कुछ डीपर डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, चैलेंजेस के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें से एक तो है दैट दे फेस ईदर द पैट्रोनेज ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज. जो होता है कुछ कुछ कॉस्टलियर होता है, जो बाहर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, वो हर मार्केट प्लेस में नहीं मिलता है. इट्स नॉट अवेलेबल ईजिली इन द मार्केट प्लेस, ठीक है. And services in the wider marketplace, or in the case of the trades, a skewed undervaluation of their economic condition. तो यहाँ पे बोला गया है, एक तो easily available नहीं रहता है goods and जो services होता है, face their patronage of their goods and services is in the wider marketplace. marketplace में wider ये नहीं होता है. एंड इन द केस ऑफ अदर ट्रेड्स, और बाकी अदर ट्रेड्स में क्या होता है, उनके केस में क्या होता है, अस्क्यूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ देयर इकोनॉमिक आउटपुट. तो इकोनॉमिक आउटपुट से अगर देखा जाए तो अंडर वैल्यूएशन मतलब उतना सही दाम नहीं मिलता है, ठीक है. स्क्यूड का क्या मतलब है, सडनली चेंज डायरेक्शन और पोजीशन. तो यहाँ पे ये एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, जो बताया जा रहा है कि बाकी अदर ट्रेडर्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, अस्क्यूड अंडर वैल्यूएशन. तो एक तरह से सडनली जो रेट होता है, जो वैल्यू मिलना चाहिए, अमाउंट मिलना चाहिए उन सभी को, वो नहीं मिलता है, अंडर वैल्यूड किया जाता है ऑफ देयर इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है. आउटपुट देखा जाता है वो चीप है, ठीक है, इसलिए सही दाम नहीं दिया जाता है. Now, crucially, the lack of access to formal credit may simply be a symptom rather than the cause of the underlying problem these communities face. तो बोला जा रहा है ये कम्युनिटीज है आर्टिस्ट का, वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है. क्रूअसली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्रूअल है, जो बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम जो सभी फेस करते हैं ज़्यादातर, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फॉर्मल क्रेडिट. फॉर्मल क्रेडिट मतलब एक तरह से तो लोन हर जगह से नहीं मिलता है, क्योंकि एवरी पर्सन सिक्योरिटीज़ क्या रखेंगे, किसी के पास तो सिक्योरिटीज़ होता भी नहीं है, तो लोन हर जगह से नहीं मिलता है. फॉर्मल लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फॉर्मल क्रेडिट जो होता है वो नहीं मिलता है. एंड क्रेडिट में सिंपली बी अ सिम्टम, ये एक सिम्टम है, ठीक है, सिम्टम की तरह बताया जा रहा है कि नहीं मिलना और बहुत लोगों के
नाकामयाबी मतलब कामयाब नहीं होते हैं, इसके वजह से बहुत लोग, ये तो एक सिम्टम हो गया। रादर दैन द कॉज ऑफ अंडरलाइंग प्रॉब्लम दीज कम्युनिटीज फेस, तो कॉज ऑफ अंडरलाइंग प्रॉब्लम, तो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कम्युनिटी का, जिसको आर्टिस्ट कम्युनिटी जो फेस करते हैं, ये एक मेजर कॉज है, एक कारण है, ठीक है, क्रेडिट ना मिलना। ठीक है, मैं लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो फेस करता है आर्टिस्ट, ठीक है, कोई भी आर्ट वर्क का, क्राफ्ट्समैन का हो या कोई भी, तो उनको एक तरह से क्रेडिट नहीं मिलता है, तो फिर एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड और ये कारण है जो उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से ये कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये एक सिम्टम, सिंपली अ सिम्टम रादर देन अ कॉज, तो ये सिम्टम बोला गया है, एक कारण के जगह एक अब सिम्टम हो गया है। एक सिम्टम वी कैन से दैट, पहले बात तो ये एक नाउन है सिम्टम, ठीक है, एंड इसका मतलब है अ फिजिकल और मेंटल फीचर विच इज़ रेगुलर। ठीक है, तो सिम्टम एक बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिम्टम एक तरह से कोई भी वायरस का क्या सिम्टम है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में कोई इलनेस हो या फिर रोग हो, लक्षण हो, उसके सिम्टम, उसके क्या सिम्टम हैं वो बताता है, तो उसके क्या क्या, तो ये कम्युनिटीज़ के बारे में बताया गया कि उनका क्या एक जो कारण है लोन नहीं मिलना, ठीक है, वो एक सिम्टम हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नो गवर्नमेंट स्कीम कैन हेल्प दिस कम्युनिटीज इन द लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में ये आर्टिस्ट कम्युनिटी कोई भी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर सकता है, unless it helps them overcome the fundamental problem of lack of economic viability of their output। तो इसमें बोला गया है unless, कोई भी गवर्नमेंट हेल्प तब तक नहीं कर सकता है जब तक unless it helps the them overcome the fundamental problem of lack of economic viability of their output। तो उनका क्या बोला गया कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है एक जो है लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ देयर आउटपुट, तो इकोनॉमिक उनके जो आउटपुट होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक आर्टिस्ट के, सपोज एक मूर्ति करता है, ओके, एक स्टैचू बनाता है मूर्ति का, ठीक है, एंड उसको सही आउटपुट, उसका सही दाम अगर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, वो कला का, तो वो उसका फिर बर्डन, वो जो उसका कॉस्ट नहीं मिल पाता है, कॉस्ट भी अगर नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे फिर उसका प्रॉब्लम बन जाता है। तो यहाँ पे बोला गया जब फंडामेंटल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर सकता है तब तक, जबकि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उनका आउटपुट है, उसको सही तरीके से सही दाम अगर जब तक ले गवर्नमेंट ना दिलाए, सही रेट पे ना बिकवाए उनका सामान, तब तक ले कोई भी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर सकता है। मोर सीरियसली, इफ द स्कीम फॉल्स टू open up new market and simply extends loans to these community in the name of the promoting their welfare, it run the risk of leaving not only the intended beneficiaries but also their families deeper in the debt, right। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, more seriously the scheme, if the scheme fails टू ओपन अप द न्यू मार्केट, अगर नया मार्केट ओपन करने में और वहाँ पे सिंपली उनको लोन एक्सटेंड करने में अगर ये कम्युनिटी, आर्टिस्ट कम्युनिटी को अगर ये फेल करता है स्कीम, इन द नेम, अगर ये लोन इन द कम्युनिटी को फेल करता है इन द नेम ऑफ प्रोमोटिंग देयर वेलफेयर, तो उनका वेलफेयर एक तरह से प्रोमोट करने में अगर ठीक है एक तरह से फेल करे, ठीक है, उनको लोन दिलाने में फेल करे, लेकिन उनका वेलफेयर प्रोमोट करने में, उनको प्रोमोट करने में, उनका प्रोडक्ट और ये सब प्रोमोट करने में, सिंपैथी के साथ में प्रोमोट करने में अगर ये रहे, इट रन्स द रिस्क ऑफ लिविंग नॉट ओनली द इंटेंडेड बेनिफिशियरी बट ऑल्सो द फैमिलीज डीपर इन डेप्थ। तो ये क्या होगा,
लोन तो उन लोग को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर उनका जो प्रोडक्ट है उसको ओपन और लार्जर एक्सटेंट और नहीं मिला मार्केट में, और वाइड पहचान नहीं मिला, और फेमस नहीं हुआ, ज़्यादा इनकम नहीं हुआ, रेवेन्यू नहीं हुआ, तो जो लोन लिए हैं वो चुकाने में भी उनको दिक्कत होगा। तो ये वही बोला जा रहा है यहाँ, उनके जो फैमिलीज़ हैं आर्टिस्ट के, डीपर इन डेप्ट, और डेप्ट बढ़ जाएगा जो लोन वो अभी ये स्कीम्स विश्वकर्मा स्कीम से लेंगे, तो जो बेनिफिशियरीज हैं उनको और दिक्कत होगा, और लोन बढ़ जाएगा, बर्डन मिल जाएगा। तब कब? जब ये स्कीम फेल हो जाएगा, उनको ओपन अप इन द मार्केट में सिंपली लोन तो दिला देगा, लेकिन ओपन अप मतलब न्यू मार्केट में उनको जगह अगर नहीं मिला तो, राइट। ऑल्सो बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द इंटरजेनरेशनल नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, बाय लेइंग स्ट्रेस, अभी जो स्ट्रेस चलते आ रहा, लेइंग मतलब लेटा हुआ, मतलब जो पहले से ही है, ठीक है, पहले से ही जो स्ट्रेस है, ठीक है, क्या स्ट्रेस है, ऑन द इंटरजेनरेशनल नेचर ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन इन दिस कम्युनिटीज़। तो आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ में क्या होता है, नॉलेज का जो नेचर है, ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन इन दिस कम्युनिटीज़, द स्कीम कुड एंड अप लिविंग द नेक्स्ट जनरेशन विली निली स्टक फॉर perpetuity in these traditional low-paying trades, many of which are practiced in a caste straight jacket। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, कुछ टर्म्स है, कुछ वोकैब के वर्ड्स हैं जिनको मैं कनेक्ट करूँगा। जो पहले से स्ट्रेस है, इंटरजेनरेशनल ऑन द इंटरजेनरेशन, जो पहले से जनरेशन जो फॉलो कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर जो फॉलो करते आए हैं, एंड नेचर ऑफ नॉलेज जो उनको पहले जनरेशन से मिलते आ रहा है, जो आर्टिस्ट को अभी जो न्यूली स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आर्ट करना, तो उनको जो पहले से जो नॉलेज मिलते आ रहा है उसमें डिसेमिनेशन इन दिस कम्युनिटीज़। तो डिसेमिनेशन इन दिस कम्युनिटीज़ का क्या मतलब है? डिसेमिनेशन का मतलब है द एक्शन और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग, ठीक है। तो जो ये नॉलेज है पहले से जनरेशन से मिलते आ रहा है, उसको स्प्रेड करना आगे जनरेशन तक जो आते जाएंगे, ठीक है, उनको उन तक पहुंचाया जा रहा है ये कम्युनिटी द्वारा। और उसके बाद में बोला जा रहा है कि द स्कीम कुड एंड अप लिविंग द नेक्स्ट जनरेशन विली नीली स्टक। तो अगर ये स्कीम सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, ठीक है, अगर ये स्कीम फेल्ड हो गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट जनरेशन को जो पिछले जनरेशन जो स्किल एंड नॉलेज मिलते आ रहा है उसको आगे वो कैसे बढ़ाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन विल्ली नीली स्ट्रक मतलब रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो विल्ली नीली एक तरह से बोला जा रहा है जो कहीं पे नहीं है, राइट, एंड तो इट विल बी स्टक, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। और विली नीली का एक तरह से वोकैब मीनिंग है वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, ठीक है। तो आगे के जो जनरेशन आएंगे अगर वो देखेंगे कि कामयाब नहीं रहा है जनरेशन, सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो उसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे आगे बढ़ाना, ठीक है। और जो पिछले जनरेशन से आ रहा है नॉलेज नेचर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, तो इस तरह से बताया जा रहा है ये। और फिर क्या करेगा, स्ट्रेट जैकेट में एक तरह से जो फंसा हुआ जैकेट में पर्सन होता है, ना बाहर निकल पाता है ना ही अंदर, तो वैसा हो जाएगा। सो इट्स वेरी रिस्की, यू नो। नाउ द विश्वकर्मा स्कीम इंक्लूड्स skilling programs that offer a nominal stipend as well as financial help to purchase modern tools। तो अब यहाँ पे बेनिफिट एडवांटेज बताया जा रहा है स्कीम का। द विश्वकर्मा स्कीम का एडवांटेज क्या है? इंक्लूड स्किलिंग प्रोग्राम, मतलब वो क्या करेगा, लोन देने के साथ में ही ये आपको स्किलिंग प्रोग्राम भी करेगा, आपको स्किल देगा जो आप
कंटिन्यू करना चाहते हैं, सपोज क्राफ्ट्समैन है या फिर बार्बर है, कोई भी ऐसा स्किल है तो उनको सिखाया जाएगा ऐसा प्रोग्राम में। एंड दैट ऑफर्स अ नॉर्मल स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मतलब जो अमाउंट लो थोड़ा कम रहता है बट मंथली बेसिस पे सीखने के टाइम पे जो पे किया जाता है, ठीक है, वो मिलते रहेगा, वो दिया जाएगा वहाँ पे, और मॉडर्न टूल से हेल्प किया जाएगा, ठीक है। एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्प टू परचेज मॉडर्न टूल, तो फाइनेंशियल हेल्प भी किया जाएगा। मॉडर्न टूल्स जो हैं अभी नए नए टेक्निकी टूल्स हैं, इक्विपमेंट से उसको परचेज करने में भी ये हेल्प करेगा। तो ये एडवांटेज था इस स्कीम का। अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ दिस वेल intentioned scheme will hinge on its implementation। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ दिस वेल इंटेंशनड, इंटेंशन अच्छा है स्कीम का, वेल इंटेंशनड, ठीक है, जो वेल इंटेंशन ये स्कीम का वेल के लिए है, वेल इंटेंशन अच्छा है, ठीक है। विल हिंज ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, हिंज का मतलब क्या है, हिंज इट्स ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, शब्द को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना सीखिए। क्या है यहाँ पे बोला गया है, सक्सेस ऑफ दिस वेल इंटेंशन स्कीम विल हिंज ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में ये हिंज करेगा। तो हिंज का क्या मतलब है, एक पहले तो ये नाउन है, ठीक है, हिंज इज नाउन एंड इसका मतलब है मूवेबल जॉइंट और मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका मीनिंग में एक तरह से मूवेबल जॉइंट और मैकेनिज्म से ये क्या करेगा, जो वेलफेयर स्कीम का जो इंटेंशन है वेलफेयर के लिए, किसके वेलफेयर के लिए, आर्टिस्ट के लिए, तो उनके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन करेगा, वो जॉइंटली करेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से स्किल भी दे रहे हैं और स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, तो ये जॉइंटली उनके लिए वेलफेयर के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसा इंटेंशन है ये स्कीम का, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, जॉइंटली एक दो मैकेनिज्म से ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा। एन एरिया वेयर द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू rope in professionals with the know-how, the entrepreneurial flair to help the craftspeople and artisans upgrade their offering to cater to new market and tap fresh opportunity। तो यहाँ पे जो आर्टिसंस के लिए, उनके कम्युनिटी के लिए बोला जा रहा है, जो फ्रेश अपॉर्चुनिटी होगा न्यू मार्केट में कैटर करते हुए हैं, वो स्किल के साथ में कैसे नो हाउ द एंटरप्रेन्योरियल फ्लेयर, तो एक तरह से प्रोफेशनल है जो आर्टिसंस का, उसको एंटरप्रेन्योर में तब्दील चेंज करने के लिए नो हाउ कैसे किया जाता है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। और वो क्राफ्ट्समैन को, आर्टिसंस को अपग्रेड करेगा, अपग्रेड देयर ऑफरिंग टू कैटर न्यू मार्केट। तो न्यू मार्केट में कंपटीशन करते हुए उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इट विल बी अ टैप फ्रेश अपॉर्चुनिटी, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द आर्टिसंस, ओके, टू compete in the new market। so this was from the editorial, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये एड्रेस किया था, जिसमें 13,000 करोड़ आउटले लोन प्रोवाइड किया जाएगा विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 2 ट्रांचेस में होगा ऑफ 3 लाख ईच ट्रांचेस। एंड ये कैबिनेट को वेडनेसडे को अप्रूवल मिला है। 18 ट्रेडर्स इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है, विथ एक साल में 5 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, एंड ओवर 5 लाख में 30 लाख फैमिलीज को, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस विश्वकर्मा स्कीम से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा ये 15 अगस्त के स्पीच में दिया गया था, right? So this was the editorial and I hope you have liked and understood as well, ठीक है। ये स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज, जानकारी मिली होगी, so it will be a very great session and I hope you all very a good luck for your exams, okay। IBPS क्लर्क 27th को है, so इंग्लिश इम्प्रूव करना होगा उसके लिए एवरी सिंगल डे विथ एडिटोरियल, राइट। रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
कुछ समझ में आए दिस एडिटोरियल से, इस सेशन से, तो इट्स वेरी गुड. And you can also read from the newspaper that I provide on Telegram. Till then, I'll take a leave and you keep smiling and stay healthy. Another important point I would like to say that the homework question. Your homework question will be World FinTech Day. World FinTech Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड FinTech Day, ठीक है. वर्ल्ड FinTech Day ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? Write in comment. Okay, it's very important. And another is GI tag. GI tag अभी टोटल कितने हैं, ठीक है. एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग कौन से स्टेट को दिया गया है, मतलब कौन से स्टेट के पास हाईएस्ट GI टैग है, राइट. राइट इन कमेंट. अभी रिसेंटली 7 प्रोडक्ट GI टैग मिला है. 7 प्रोडक्ट फ्रॉम 3 स्टेट्स, ठीक है. 7 प्रोडक्ट फ्रॉम 3 स्टेट, दैट इज राजस्थान जिसको 4 GI टैग मिला है, गोवा जिसको 2 GI टैग, एंड यूपी जिसको 1 GI टैग अभी रिसेंटली मिला है. तो टोटल 7 फ्रॉम दिस 3 states, right. So write in comments the total number of GI tag is which state is having, and World FinTech Day is celebrated on which day. Okay, take care and